Shruti Belwar and welcome to the webinar and interview of the alumni of Northwestern. अभी इस सेशन में बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन कर पाए हैं, but it's okay. We will have this as a recording for the other students who will join later or maybe register later with us. So नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बारे में, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन थ्रू द वीडियोस एंड ब्लॉगिंग्स हमारी तरफ से मिली हैं, जो हमने आपको प्रोवाइड करी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर उनके हॉस्टल्स हो या फिर उनका जो एनाटॉमी क्लास हो. आई होप एवरीवन नोज दैट हाउ यू गोना बी लुकिंग एट योर यूनिवर्सिटी एंड योर क्लासरूम, everything, right? But lot of you were asking about that. We want a feedback from the students who have already studied or are studying. So we thought that why not हम alumni से बात करवाएं जो already establish करके अपने आप को अब काम कर रहे हैं और अच्छे से जो है अपना कहते हैं ना कि अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको उनसे ज्यादा जो है एस्पिरेशंस और इंस्पिरेशंस मिल सकती हैं. So for that reason I have met him already in the Jaipur seminar, और कई बार आपको हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न से रिलेटेड वीडियोस होती है उनको वो काफी कमेंट्स को आंसर भी करते हैं because they want the students to be aware of things. So we have invited Dr. Shailendra Dikshit, who is right now in Udaipur, and he has taken time to communicate with you all. So please do ask your question in the chat section and we will answer all of them. ठीक है ना? तो आप ये मत बोलना कि मैम ये क्वेश्चन रह गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए. Ask every question that you have about the studies, maybe about the medicine, maybe about in future आपको क्या लगता है कि आपका prospect है, maybe around PG you can ask. So I think he will be better answering it. Hello Dr. Shailendra, how are you? I'm fine, ma'am. How are you? I'm also good. Great, and thank you so much. हम काफी दिनों से ये बात कर रहे थे कि आप वेबिनार कब निकाल सकते हैं टाइम, एंड आपने फाइनली टाइम निकाला. Thank you so much. No, it's my pleasure to be with you, and it's always good to meet with some of the students who are enthusiastic to go to the Northwest University, because I being an old student of that university. Yes. So it's always good to help everybody. Yeah, right. So we have all the students who are either interested or are already registered for Northwestern. काफी सालों से, जैसे डॉक्टर भादु को आप जानते ही हैं, उनकी तरफ से हमेशा ही yes, he is like my super senior. Yeah. Always like a brotherly figure to us. हाँ, तो वो काफी बोलते थे कि माय यूनिवर्सिटी बहुत सबसे बहुत अच्छी कैंपस है, अगर आप वो देखोगे तो बहुत अच्छा है. तो by whatever grace this university has started taking Indian students, and we have already recruited many of them and got the very good feedback. अभी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं. So first of all, something about your experience till now. Maybe अगर आप वापस पास में जाएं और बताएं कि कैसा था, आपने कैसे, मैं स्टार्टिंग में पूछूंगी, आपने डिसाइड कैसे किया रशिया जाने का? So actually, I'm basically from Udaipur, Rajasthan, and I have done my schooling from St. Paul's, Udaipur and Kota. Okay. And after that, I was giving my PMT exam. At that time, it used to be PMT. Okay. So I cleared that, but I got my seat in BDS. But by and large, I had a thought, I have to do my MBBS and everything. Okay. So there were some friends of mine who were going there. So at that time, we didn't have that much of this social media and everything, mobiles and everything. So we just made a group and we just had some information about that place. Some of our seniors were also there somehow. So then we just planned, we have to go, and we explored it somehow. Through at that time, emails were there. So we explored that place through the email. We had contacts with some of the teachers. And then after the whole workup, we decided that we have to go. So we didn't have any experience about that. But then we have a thought, okay, we'll go, we'll see the place. And if everything goes right, we are going to stay there. So first of all, we went there. We had the whole orientation, everything. We went by ourselves. So there were some of the seniors who helped us. And then eventually we thought that, yes, this is a place which we can study because there are many of the West norms that, okay, there is a language problem. How are you going to deal with this? Because there are no contacts with everybody. But then eventually when you go to some place, you manage everything. That depends on your skill. So then we went there, we explored Northwest University.
The campus at that time, it's like a historic monument. Okay. So the first thing is that if you think that it's like a very corporate type of thing, no. Russian love their historic places and they keep it like that only. So we went there, we liked the building, oh, it's very good. We met with some of the teachers and everything was very fine. Then we decided, okay, we can start with this university. There is no issues with that. So, but then there was one thing, we had a thought process, okay, we can even learn some language in between. Because before going there, we have a time of like 5 to 6 months. So everybody, one of us, we went like 5 months back before of starting of our semester because it starts from the September. So in 2004, actually, we went. We were actually a group of like around 10 to 15 students. So we went there. We met with some of the seniors, which we met them practically there only at that time. Then we did this 4 to 5 months like language course. Because anywhere, wherever you go, if you learn the language, it's good to communicate with the local people. Right. And it's same like India also. It's like I'm a North Indian, and if I go to the South India, I have to learn some language because you have to interact with the people. Right. So we learned the language, and then we started actually in 2004. At that time, it was St. Petersburg State Medical Academy, IMST. So we started our course in the Russian language the first year. So they were like basic subjects because we have that much of fluency that we can speak in 6 months to the local people. Plus, we can interact with the teachers because it was a group. You learn eventually. It's very fast process, not like a slow process. You learn it. It's not a very big deal to learn a new language if you are like keen to do that. So we started in 2004 in the Russian language the first year. In the first year, there was like anatomy, biochemistry, physiology, micro, like 4 subjects. We learned them everything in Russian. Then eventually, already English medium was going on at that time. Like when we went there were already like 6 to 10 batches already. So like they were already having everything in English medium. So we from second year we started in English medium everything, and eventually we got our degree in English only in 2009, 15 June 2009. And that was a very good experience because first of all, it's a very historic place. It's one of the most beautiful cities. No doubt about that. Nights in the summers, they call it as a white night, which is a very different experience because we can't see that thing in India anyhow. So it's like a European thing. And people have a thought process at that time कि यार आप तो रशिया जा रहे हो, पता नहीं कैसा होगा. Nobody knows that. But the thing is that Russia actually has 2 parts. So it's a big country. So actually one of them is a European part and another one is a Asian part. So European part is something which is like Moscow, St. Petersburg. St. Petersburg actually shares its boundary with Finland. Yes. So it's like a European part. It's like a totally European cities. And they are fully developed at that time. I don't know at present because it's like a long time. I've not been there. So at that time it was like way too advanced city at that time also. Okay. Like metros, like we have never seen before the metros in India at that time. India में थी भी नहीं. I think 2009. And those metros are like from World War II. So the metros are also like historic places to visit. And then we actually started our course. And the teachers are cooperative departments. And the first good thing is that all the departments are in one place. You don't have to rush here and there. It's like you are going from the hostel. And hostel was at that time, there were like 4 hostels. One was in the premises, and there were 3 more hostels which were outside. But then eventually, what the dean did, they kept all the students, all the foreign students, including the Indians or the Pakistanis or the Arabic students or any other students, in the premises only. Because it's a big hostel, the Piskarevsky. So there was no issues with that. So we have to go in the campus only. 90%. 10%, there were some of the classes because sometimes patients change from place to place. Okay. So some of the times, like in the final year, we used to go to some other hospitals, like it's like 10%. Yeah. It was not a big deal. Yeah. Because metros and everything is there. It's like a 20 minutes from the bus only. Yeah. For seeing some of the patients, which we also do in India also. Okay. So everything is in English. The dean office is very cooperative because anytime you'll go to India, you'll get your visas and everything from the dean office. You don't have to go outside the premises. Consulate general is there. So even if
there is any problem with the passport or anything, they will help us. Yeah. Because not far away from the Yes, 11 destination, minutes. it's very nearby. Yeah, 11 minutes का है काफी मतलब बहुत पास Yes, है. it's like वो सिर्फ 20 मिनट का दूरी है और वो भी by bus, trams or anything you can reach. It's not a very big deal. So some of the seniors were used to own a car also, so we used to go with them. So it's not a big thing. Okay. It's not that expensive, which we think. But the currency is a bit of a higher because our economy and their economy is a little bit different. Because they're like totally developed country. So things vary. So you can deal with the dollars there, you can deal with the euros also there. Because both the currencies work there. True. If you have ruble, no issues. So the payment, they will take whatever mode you have, either in dollars or rubles or whatever you want it to be. And the best thing is that the teachers are very cooperative. They will help you in each and every moment. And the classes are very punctual. It's not like this that you can just miss a class and you are sitting in the hostel. It's not to deal with that place, because those places are not for something you miss your class, you're sitting in your hostel. It's not possible. They are very punctual. You will get your bag immediately. So it's very mandatory that you have to go your classes on time with no offenses. एक ना ये भी बताइए कि क्लिनिकल्स करते वक्त क्या कैरेबस वगैरह मिलते थे आपको वहाँ पे? Yes. Even in the anatomy in the first year, we used to get the cadavers. So we used to practice there. Then there was a subject which is known as the surgical anatomy. Yeah. In which they will actually allow you to dissect everything. Like in India, they have combined, but there in anatomy, they will only teach what the parts are all about. But in the similar fashion, they have a different branch where they will actually allow you to dissect everything. You have to make your own presentation in that. At that time, we used to do like that. So cadaver and everything, they will give you hands-on training. Okay. और अगर कोई स्टूडेंट जैसे आपने बताया बैक लगती है किसी की, या मान लीजिए वो एक सब्जेक्ट में फेल होता है, चाहे वो एनाटॉमी हो या कुछ फर्क पड़ता है कि किसमें फेल हुआ है और कैसे बैक लगती है? तो इसमें एक्चुअली सिस्टम मैम की एवरी जैसे आपका फर्स्ट ईयर उसमें एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री सब है, सो दे हैव अ सिस्टम की every 2 weeks they will take your MCQ exams. True. It's mandatory. Lectures you have to go mandatory, or else they will give you a back, which is not very good thing to do. So अगर किसी की बैक लगती है, then it depends कि आपके फिर वो अगर आपकी लेक्चर में बैक लगी है, that is different thing. क्लास में बैक लगी है, that is different thing. और आपका जिस दिन MCQ एग्जाम था उस दिन आपने या उस दिन की अलग, all three थी अलग-अलग मोड से चलती है. जितनी क्लासेस आप जितनी क्लासेस आपने मिस करी है, आपको वापस टीचर से टाइम लेके उनको अटेंड करना पड़ेगा. With other batches or what, like we have like 150 students. And 150 students के अंदर हमारे 13-14 batches थे, like 10 करके, and some other batches also. So अगर जिसकी बैक लगी है या जिसने कोई क्लास मिस करी है, उसको दूसरे बैच के साथ जाके क्लास अटेंड करनी है. You have to take the time from the teacher, everything, and you have to finish that thing in the first year only, because if it goes to the second year, then it is an extra burden for you. True. एंड अगर आपको मतलब टीचर्स हैं, इंग्लिश की बात करें तो उस वक्त आपको इंग्लिश समझ में आती थी उनकी अच्छे से? वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. राइट. हमको ऐसा लगता है कि रशियंस नहीं बोलते, बट दे आर वेरी लाइक दैट पीपल की वो बोलना कम पसंद करेंगे, बट व्हेन दे स्पीक दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल. They are very straightforward. They are not like कि उनके दिमाग में कोई leniency नहीं है. Even if for the Russian student or Indian student or any other country, अगर आप नहीं कर रहे हैं, then they will straightforward give you a back कि नहीं, आपको next session आगे करना. Right. Fine. आप जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपने क्वेश्चन लिखते रहिए, मैं भी पूछ रही हूँ, लेकिन आप अपने पर्सनल क्वेश्चन लिख सकते हैं. अच्छा, आप उस वक्त देखिए अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल है सेंट पीटर्सबर्ग में. 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं बड़े बड़े. हमारे टाइम में 3 थी एटलीस्ट, मुझे ध्यान है. 3 थे. यस, मेरे टाइम में 3 रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे. मतलब हॉस्टल से इतना दूर नहीं थे, लाइक 20-25 मिनट्स में हम लोग पहुंच सकते थे. जाने का टाइम कम मिलता था बिकॉज लाइक यू आर बिजी, एंड बिकॉज इट्स अ यूरोपियन कंट्री, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि हमको कोई खाना बना के खिलाएगा. ठीक है, वहाँ पर इंडियन मैसेस हैं. इंडियन मैस पहले भी थी, मोस्टली शायद अभी भी होगी, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नॉट बीन देयर. इंडियन रेस्टोरेंट्स थी वहाँ पर, प्लस वहाँ पर इंडियन शॉप्स हैं, एंड लॉट्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी रहती है. और प्लस वहाँ पर आपकी इंडियन टेंपल है जिसमें हम लोग रेगुलरली, हमको इनविटेशन भी आता था, हम लोग जाते ही थे वहाँ पर.
तो फेस्टिव सीजन्स में वो भी हमको इनवाइट करते थे, हम लोग जाते थे उनके वहाँ पे। अच्छा। सो इट वाज नेवर अ बिग डील। ठीक है। एंड जैसे वहां पे आप लोग जब रहते थे तो सेफ लगता था कंट्री? कैसा सेफ्टी के मामले में आप उसे कितना रेटिंग दोगे सेंट पीटर्सबर्ग को, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो? आई क्या क्या थिंक एट दैट रेसिज्म टाइम व्हेन, रेसिज्म तो नहीं है? सॉरी, रेसिज्म? नो नो, विद रशियंस देयर इज नो रेसिज्म, दे वोंट ट्रीट इट लाइक दिस, बट हाँ, उस टाइम पर कुछ एंटी नाजी टाइप के कुछ इश्यूज हुआ करते थे, बट वो मोस्टली सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। तो अब है नहीं इतना, मुझे भी नहीं लगता कि हमको तो ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं होगा। अच्छा। वी नेवर हाँ फेल्ट कि हाँ, ऐसा अभी कुछ है तो। भी। हाँ। हम लोग रात में बाहर जाते थे तो हम, मतलब मुझे तो नहीं ध्यान है कि हमारे बैच में किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। राइट राइट राइट। एंड See, एक हाँ। बहुत सिंपल चीज है, इवन अगर हम जैसे इंडिया में भी रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, बट दैट डजंट मीन कि प्लेस में किसी चीज का इफेक्ट है, बट हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। ओके। आप पीटर्सबर्ग के अलावा किसी और सिटी में भी गए थे? मैं मॉस्को घूमने गया था, मैं फिनलैंड भी घूम चुका हूँ वहां से, बिकॉज सब पास पास ही है। ओके सो ओके। बाकी कनेक्टिंग फ्लाइट से कभी होती थी, तो डिपेंड करता है कि जैसे ताशकंद वगैरह से हम लोग कभी आते थे हम्म तो 10 आवर का भी ट्रांजिट होता था, हम घूम जा सकते थे बाहर तक, ऐसा कुछ नहीं। वाया ताशकंद होके जा सकते हैं। हाँ, बिकॉज फ्लाइट्स क्या है कि टू एंड फ्रो थोड़ी चीप पड़ती है फिर, हम्म बिकॉज दिल्ली टू ताशकंद एंड ताशकंद टू आइदर सेंट पीटर्सबर्ग। हम्म एंड अगर आप मॉस्को तक जाते हैं देन यू हैव टू कैच अ ट्रेन अराउंड एट, मे बी शायद 8 और 9 o'clock रात में ट्रेन मिलती है वहां से, हम्म। जो अराउंड 8 o'clock ऑलमोस्ट सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा देती है, सिटी सेंटर को। ओके। तो फिर आपने, जब आप वहां से पूरी डिग्री करके आ जाते हैं, आपको डिप्लोम मिलता है वहां का, राइट? तब एमडी फिजिशियन की डिग्री मिलती थी। एमडी उसको वो फिजिशियन। डिप्लोम बोलते हैं बिकॉज यूरोप की सारी कंट्रीज के अंदर उसका यही नाम है, उसको जी। डिप्लोम ही बोला जाता डिप्लोम, यस यस। है। यस। उसके उसके बाद आपको तब वहां पे वहां का लाइसेंस नहीं लेना पड़ा था ना, इंडिया में आके एफएमजी नहीं में? नहीं 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 नहीं, हमको हमें एफएमजी का एग्जाम हम लोगों ने दिया था। 2000 में हम लोग इधर आए थे, तब ओएमआर शिफ्ट में एग्जाम होता था, एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पास कर लिया था। ओके ओके। एंड आपको जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है, गॉस एग्जाम कहते हैं उसको, तो जी जी जी, वो फाइनल ईयर में कौन सा डिफिकल्ट एग्जाम होता होता है है? क्या, जो जब डिग्री से पहले मिलता है, करना पड़ता है एग्जाम? उसमें एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया वाला सिनेरियो नहीं है उनका, क्या होता है कि एक ही दिन में 5 एग्जाम होते हैं उनके। हम्म। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8 in the morning एंड इट विल एंड अराउंड 9 in the night। ओके। सो उसके अंदर मेडिसिन है, सर्जरी है, आपका ओबीजी है, देन इन्फेक्शियस डिजीज करके वहाँ पर एक सब्जेक्ट था जो कि इंडिया में अब स्टार्ट हुआ है, हम्म। और एक सॉर्ट ऑफ लाइक पीएसएम सब्जेक्ट्स होता था, सो नहीं, हाँ। हाँ पीएसएम था। सो लाइक 5 एग्जाम्स, उसका पीएसएम का एग्जाम का नाम कुछ और है वहाँ पर, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। तो 5 एग्जाम्स होते थे स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट, जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल्स तो सारे सब्जेक्ट के पहले ही हो जाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म बट देन जब वहां पर आप जाते थे, सो दे विल गिव यू स्मॉल चिट। इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि आप बैठ के वहाँ लिखेंगे सारा, दे डोंट बिलीव इन दैट थिंग। हम्म दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि हमने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, हम्म वन इज फ्रॉम मेडिसिन, वन इज फ्रॉम सर्जरी, वन इज फ्रॉम ओबीजी, वन इज फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, 3 प्रैक्टिकल टेबल्स होते थे। सो दे विल गिव यू पेपर जिसमें 5 6 क्वेश्चंस हैं, दे विल जस्ट गिव यू 2 पेपर्स टू राइट समथिंग इफ यू वांट, हम्म। and all 150 students will sit together and they will call your name, ओके। and they were like 12 tables, on every table there are three teachers, so they will call you on any table and you will directly, they will take off your paper, no issues, they will just keep your question paper in front of you, start answering. Because so there is no sort of like copying issue, whatever you know you have to speak, it's like totally practical, because if you have practical knowledge there is no need of writing anything. हाँ, सही बात है। So because if your theory is strong, there is no use of like writing everything on 10 or 20 papers. राइट। Even if you know the whole subject, you can speak out the whole subject, like medicine, if they have some system like respiratory. So they will ask the whole respiratory system. And you have 10 minutes and you have to explain everything. ओके। It's not that hard if you have read everything very fine. तो ये जो गॉस एग्जाम है, ये तो आपका तब इंग्लिश में हुआ था या रशियन लैंग्वेज में था? हम इंग्लिश मीडियम में थे सर। अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम में हो गए थे फिर उसके बाद? यस यस, मैं सेकंड ईयर से इंग्लिश मीडियम में था टिल द फाइनल ईयर। ऑलराइट। दो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछे, एक तो पूछा है कि क्लास शुरू और खत्म कब होती थी आपकी, जैसे नॉर्मल क्लास है?
उसमें डिपेंड करता था कि हमारा टाइम टेबल जो था हमको लाइक 1 वीक बिफोर मिलता था हमको। कई बार इवनिंग मतलब जैसे मॉर्निंग में जनरली क्लासेस होती हैं अराउंड 8 to 2। दैट इज द यूजुअल टाइम ऑफ द क्लासेस जिसमें आपका चाहे प्रैक्टिकल हो रहा है चाहे थ्योरी वॉट एवर इज देयर। एंड देन फ्रॉम 3 to 4 और 3 to 5 हमारे लेक्चर्स होते थे। Okay. And it will depend from subject to subject. Sometimes it might change. And year to year also, ना? आगे next. Yes, year to year. Different. और जब आपकी प्रैक्टिकल क्लास होती थी जो हॉस्टल्स में होती थी तो फिर उसका टाइमिंग कुछ डिफरेंट होता होगा या प्रैक्टिकल? No, that is the same time. Same time. Okay. अनदर क्वेश्चन, जैसे 2 महीने की या 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है बच्चों को समर में, तो वो क्या कोई काम देते हैं करने के लिए या कोई इंटर्नशिप करने को बोलते हैं या फ्री होते हो आप? एक्चुअली जो हम छुट्टियां होती हैं वो मोस्टली मिड जून से होती हैं बिकॉज सारे जो ईयर्स के एग्जाम होते हैं वो जनरली मई टू जून में फिनिश हो जाते हैं। मई से स्टार्ट होते हैं जून तक फिनिश हो जाते हैं। तो जनरली मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते थे जून से लेकर सितंबर तक घर चले जाते थे। सो दे विल अलाउ कि अगर आपको घर जाके कहीं पर जाकर अपना प्रैक्टिकल कुछ करना है तो काफी बच्चे जैसे इंडिया में आते थे तो जिस भी प्लेस में आसपास किसी हॉस्पिटल जाके वर्कआउट करते थे अपना। अच्छा, जो लोग वहाँ रुक जाते थे, कुछ लोगों को अगर इच्छा होती थी कि वो हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर काम करे तो करते हैं। और एल्स जनरली क्या होता है बाहर का कल्चर है यू गो एंड डू एज अ पार्ट टाइम जॉब। True. And part time job doing is a very good thing because you learn many things from ground zero. Yeah. Except the medical life. So you learn many things from that part of your life because वहां पर जाके किसी को शर्म नहीं आती किसी पार्ट टाइम जॉब करने बिकॉज इट्स गुड थिंग यू आर अर्निंग योर मनी योरसेल्फ एंड यू आर हेल्पिंग योर पेरेंट्स कि हो सकता है उनको आपको पैसे ना भी भेजने पड़े। सो वी यूज्ड टू डू पार्ट टाइम आल्सो। ओके, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो या आप घर वापस आ सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। हाँ, दैट्स योर चॉइस, दिस इज टोटली योर चॉइस। हाँ, तो जैसे घर आए, किसी ने चाहा तो इंटर्नशिप या कुछ भी ऑब्जर्वरशिप कर ली, किसी ने कहा हाँ, तो ऑब्जर्वरशिप कर सकते हो। कुछ भी नहीं किया You तो can भी do. मतलब इट्स नॉट फिक्स कि करना ही करना है। That's up to you. That's your choice. All right. Because anyways, after final year, when you come back to India, you have to do your internship. The basic thing, practical thing, you learn in your internship. राइट। और जैसे एफएमजी एग्जाम देने के बाद जो आपको इंटर्नशिप करनी होगी इंडिया में, वो आपको कैसे मिली थी? एमसीआई ने बताया था कहाँ करनी है या खुद आपने इंटर्नशिप? नहीं नहीं, उसमें क्या होता है कि जब एनडी का एग्जाम देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आ जाता है वो रिजल्ट लेके उस समय हम लोग सब दिल्ली में। सो उस समय क्या होता था कि इंटर्नशिप की वो निकलती थी, बॉन्ड्स निकलती थी डिफरेंट डिफरेंट होता है, सफदरजंग हो चाहे आरएमएल हॉस्पिटल हो चाहे एम्स हो वॉट एवर इंदौर हो एनीवेयर। सो हम लोग वहाँ पर रैंडमली जाते थे, वहाँ इंटरव्यू देते हैं एंड देन यू विल गेट योर इंटर्नशिप स्टार्टेड फॉर 1 ईयर। ओके ओके, मतलब वहीं जाके आप अपना इंटरव्यू दे दो और एक्सेप्ट हो जाओ। यस, व्हाई नॉट। ओके ओके ओके। एंड उसके अलावा जैसे हॉस्टल लाइफ में और भी कल्चर के बच्चे होते हैं अदर कंट्री के, तो कैसा सही रहता है? कोई दिक्कत तो नहीं होती अदर कल्चर? जैसे चलो आप रशिया में नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होता। बाहर जाके ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बाहर जाके सब एक है। रैगिंग बिकॉज रैगिंग एवरीबॉडी हैज होती टू हो, हेल्प योर फैमिली बिकॉज एवरीबॉडी इज अ फैमिली। एनी रैगिंग और समथिंग? रैगिंग तो ऐसा कुछ होती नहीं वहां पर, बट ठीक है सीनियर्स हैं, यू विल लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, बट रैगिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है। दे विल आस्क वहां पर क्वेश्चन। ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, अब्रॉड में तो नहीं हाँ, होता। जस्ट जस्ट हाँ, अब्रॉड में कहीं भी रैगिंग वाला सिस्टम ही नहीं है। दे विल जस्ट आस्क योर इंट्रोडक्शन, आप उनके साथ बैठे बात करें, यू विल लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स मेनी थिंग्स। ट्रू, या इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनसे A healthy ragging is always good because that is the way you learn to respect your seniors. Not a nasty one because nasty one तो कोई नहीं लेता है, so healthy raggings होती है। रैगिंग भी हमारे टाइम तो नेक के बराबर ही हुई थी। There was nothing like ragging. Alright. Any other question to any student जो भी आप पूछना चाहें, और भी क्वेश्चन है तो पूछे क्योंकि फिर हम एंड करेंगे इस वेबिनार को। एनीवेज, अभी जैसे आपका एक्सपीरियंस है, अभी आप कहीं भी वर्किंग कर, अभी आप हॉस्पिटल में जैसे आपने कहा उदयपुर में आप वर्किंग कर रहे हैं। यस यस, मैंने अपना एफएमजी का एग्जाम पास करने के बाद आरएमएल हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप करी थी फॉर 1 ईयर। देन आई एम वर्किंग एज अ जूनियर रेजिडेंट इन सफदरजंग हॉस्पिटल इन दिल्ली। एंड देन आई क्लियर्ड माय पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम एंड आई वेंट टू कोयंबटूर तमिलनाडु फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन। And when I finished that, at present I'm working in Gitanjali Hospital, Udaipur, as an associate consultant, Department of Cardiology. Nice. From past like 5 years. Right, right. So आपने तमिलनाडु से अपना पीजी कर लिया। Nice, very good. Yes, yes, yes. ऐसा कुछ होता है कि भाई रशिया से जो पढ़े हुए आते हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन? कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। Because they know one thing कि जिसने भी एफएमजी का एग्जाम पास किया है, it's a big deal.
because FMG exam is like at par to PG exam. Who can pass FMG exam, they can pass PG also. Like in one way go. Okay. ये पूछ रहे हैं, what is the average income in India of MBBS doctor when you come from Russia as a fresher? Do you have any idea? Yes, if you have passed your exam, then depends from state to state. Like you will work like a junior resident if you're working in like junior resident in Delhi. After this thing, at that time, we used to get a stipend of 60,000 rupees as a junior resident. That's about Delhi. I don't know about the present scenario. Then the next thing is if you are working in Rajasthan, like I used to work, that's a similar amount, like 50, 60,000 as a junior resident. So it's, and after post graduation, the amount will differ from department to department. Okay. आपने बोला कि जैसे इंडिया में आके आप जूनियर रेजिडेंट बनते हो, तो जूनियर क्यों होता है इसमें, जूनियर रेजिडेंट क्यों बनता है? So that's a scale. Once you pass your exam, then like your MBBS, then your intern. Then if you want to work in a hospital before PG, then you work as a junior resident. Once you pass your PG exam, PG, then you do your PG for 3 years. So that PG is like academic JR in any hospital. Academic JR. And there is one non-academic JR. And after you will pass your all the PG and everything 3 years, then you'll work as a senior resident in any hospital for 2 to 3 years as per the MCA norms, NMC norms. And after that, you will be considered at par to like a associate consultant, like an AP or a professor. Then it goes with grading. तो ये सेम होता है for Indian graduates also, जो who's graduate. Same for everybody. Same for everybody. तो JR की तरह आप काम करते हो, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो लाइफ में और पोजीशन. हाँ, but depend करता है कि जैसे आपने इंटर्नशिप करी, then you don't want to work as a JR, आप PG के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. It's not mandatory कि आप JR शिप करें. Right. So that is very important. Good knowledge. Yes. Great. So I think that's a wrap up. और आप भी अभी काफी occupied हो. I think student का सवाल हो चुका है. एक student ने पूछा, can we do internship in any hospital, AIIMS also? मतलब आने के बाद. Yes, why not? Anywhere, but wherever you are, even in your state, in your city, you just have to go to the hospital which gives you internship. Generally, the government medical colleges they will give you internship, or the private also. Depends from state to state. You have to just go there, and as per the NMC, MCA norms, you have to go there. You have to apply for an internship. अगर किसी का Having said that, you need your FMG exam. Okay. अगर इसका इंडिया में मान लीजिए नहीं होता है, तो अब्रॉड के क्या ऑप्शन लगते हैं आपको, कि अच्छे ऑप्शंस है कहीं अब्रॉड से पीजी करना है एंड ऑल दैट? Yes, why not? You can अगर आप इंडिया में ट्राई नहीं करना चाहते हैं, so हमारे कुछ बैचमेट्स थे वो डायरेक्टली वहां से जर्मनी वगैरह चले गए थे क्योंकि वहां पर शायद पोस्ट ग्रेजुएशन फ्री होती है. I thought मैंने सुना है ऐसा in their language. Then if you don't want to do that, then the part 2 is like you can even give MRCP exam from India. Previously MRCP करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था फाइनल ईयर के टाइम पे पेसिस के अंदर, but at present all 3 parts, MRCP part 1, part 2 and पेसिस तीनों इंडिया में होते हैं. It's like a 3 year में आप सारे एग्जाम पास कर सकते हैं. You can work as a MD medicine doctor. Right. Similarly, if you want, you can pass USMLE exam also. कोई भी एग्जाम दे सकते हैं. It's your choice. Yes, it's your choice. Okay. Great. I think these are the questions that we have to ask, and very good information. And बहुत motivation मिला है students को. आपने अच्छा एक बार आपने ये भी बताया था, sorry, comment में कि यहाँ gym है. बच्चे ने पूछा था gym के बारे में. Yes. तो क्या है यहाँ पे? So actually क्या है कि जो कॉलेज बिल्डिंग है उसके बहुत लास्ट में जब जाते हैं बिल्कुल पूरा पास करके, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें रशियंस तो फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग वहां पर क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते थे. तो इट्स लाइक ए ग्राउंड, क्योंकि हमारा हर साल टूर्नामेंट होता था खुद के कॉलेज का, तो हम लोग वहां पर क्रिकेट करते थे. देन वहां पर 2 इंडोर हॉल्स हैं, हॉल या मतलब इंडोर वैसा बोल सकते हैं, जिसमें वहां पर आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, और हम लोग उसमें क्रिकेट भी खेलते थे बिकॉज फ्लोर थे. देन प्रेमाइसिस के अंदर ही एक जिम भी है और ट्रेनर्स भी हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. सारा कैंपस खुद इतना बड़ा है कि अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिलिंग भी कर लेंगे तो पूरा दिन आपको ऐसे. हाँ, सही बोला आपने, काफी बड़ा एरिया ऐसा ही है. नाइस. सो एनीथिंग एल्स? हॉस्टल इतना अच्छा है बिकॉज हॉस्टल इज वेरी गुड. और जो बाहर के हॉस्टल है, कभी आप बाहर वाले हॉस्टल्स में भी रहे या सिर्फ अंदर वाले हॉस्टल में आप पूरे टाइम रहे, तो कैसा रहा था? हाँ, हम लोग बिल्कुल जाते थे कि जो हमारे सीनियर थे बादू सर, उनके वहां पर हॉस्टल वो बाहर ही रहते थे, हम लोग उनके पास बहुत मिलने जाते थे. ऑलमोस्ट मंथ में 2-3 सैटरडे उन्हीं के पास जाके रहते थे. तो ही वाज लाइक अ एल्डर ब्रदर टू एवरीबॉडी, आवर होल कोर्स.
जिन्होंने हमारा एक्चुअली ध्यान रखा है बहुत अच्छे से, गाइड किया उन्होंने हमको अच्छी जगह पे। और हम लोग बाहर जाते थे, इट्स नॉट वेरी बिग थिंग, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। ओके ओके, ग्रेट डॉक्टर शैलेंद्र, बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर वट एवर टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस, इट्स नाइस। और आप ऐसे ही कमेंट भी करते रहिएगा हमारे जितनी भी वीडियोस आती हैं, बिकॉज दैट्स मोटिवेटिंग फॉर अस एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। श्योर श्योर मैम, आई एम ऑलवेज देयर टाइम, एंड इट्स बीन अ प्लेजर एंड ऑनर कि हम सब अभी बात कर पा रहे अच्छे से और जी अच्छी। जी जी, आपकी आवाज कट गई। हाँ एक मिनट मैम, हाँ मेरा आ गई, एक्चुअली आ गई, आ अब आ गई। रही। जी जी जी। सो इट्स बीन एन ऑनर कि आप इतना अच्छा स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं और सब लोग बाहर जाना चाहते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज इंडिया में आने के बाद सब बराबर है, कोई देयर इज नोबडी डिफरेंट। तो अपना ड्रीम परस्यू करना चाहिए, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड, राइट? व्हाई नॉट, यू हैव टू अचीव योर ड्रीम एनी हाउ, बिकॉज इंडिया में आके सबके एग्जाम एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस। राइट राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द योर टाइम एंड हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू मैम, इट्स बीन अ प्लेजर, स्पासिबा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू स्पासिबा। मैम। ओके ओके। सो गाइज, डॉक्टर शैलेंद्र से आप लोगों ने बहुत कम क्वेश्चन पूछे, आई डोंट नो व्हाई, बट नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग के अभी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप मेल से पूछना चाहते हैं, तो कैन अगेन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट ने पूछा, मैम आप मैथ्स कब स्टार्ट करोगे? यार मैथ्स हम स्टार्ट करेंगे जब 150 से अबव स्टूडेंट्स वहाँ पे हो जाएंगे, बिकॉज उसके लिए उतने बच्चे चाहिए। तो इंडियन खाना हर कोई नहीं खाएगा, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही खाना खाते हैं, इंडियन खाना। तो इस वजह से हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है। लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट टू माय। Yes, I hope it's audible now better. Right. सो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती हैं। ठीक है, पहले आपको जैसे हमने कहा भी मेस नहीं है, लेकिन मेस खुलेगी जब एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। Do we need any extra coaching for next? Yes, you would need, because you would need the coaching, the practice papers. ठीक है, आपको किससे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पहले कैसे आए थे, अब क्या पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आपको एक मिनी कोचिंग टाइप जरूर चाहिए होगी, जो यूनिवर्सिटी के अलावा आपको जो पढ़ाएंगे। आप चाहे तो वो चीज इंडिया में आके ले सकते हैं, या ऑनलाइन आजकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। जो बेस्ट आपको रिजल्ट लग रहा हो, चाहे वो मैरो हो या प्रेपलेडर, आप उनमें से किसी को चूज करिए। ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज लर्न सम रशियन वर्ड्स, रशियन लैंग्वेजेस, रशियन लेटर्स, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए जब भी आप वहाँ पे सिटी में वॉक कर रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो। कुछ भी पढ़ना आपको इजी हो जाएगा अगर आप इनिशियल क्लासेस कुछ ले लेंगे फॉर द लेटर्स एंड दिस। Ma'am, all the students, those who are going through your consultancy, will go together to Petersburg or what? Yes, they will go together. अगर timely सबका वीजा ऑन टाइम लगता है उस तरीके से, तो डेफिनेटली ठीक है। अराउंड 150 स्टूडेंट्स विल गो टुगेदर, राहुल। सो आप भी अपने जो और फ्रेंड्स हो उनको इन्फॉर्म कीजिए, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी। तो अगर और जल्दी बच्चे वो होंगे तो हम वीजा का शुरू करेंगे। एग्जामिनेशन की डेट आप लोग की आने वाली है, और अभी आपको क्या करना है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और आपके जो पेमेंट्स है वो क्लियर है, ताकि आपका वीजा टाइम पे लगे। राइट? एनी अदर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चंस? any office member will be with us. So what we are trying, अंश, कि हम आपको सीनियर के साथ भेज देंगे, बिकॉज जर्नी में बेसिकली ऑफिस मेंबर्स का कोई यूज नहीं होता, कोई नीड नहीं होती है। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको ऑफिस में जो हमारे हैं रशिया में, वो आपको वहां मिल ही जाएंगे, और फ्लाइट में आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप लोग प्लीज कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए। मैम, इज यूके पे अलाउड है एमबीबीएस फ्रॉम रशिया? हाँ, यूके का प्लान सर जैसे डॉक्टर बता रहे थे, अलाउड है।
मैम, इज इट डिफिकल्ट टू स्टडी देयर फॉर एन एवरेज स्टूडेंट? एवरेज स्टूडेंट हमेशा एवरेज तो नहीं रहेगा, एवरेज स्टूडेंट भी कभी बिलो अबव एवरेज जाएगा। तो आपको अगर लग रहा है कि आप एवरेज हो और आप अबव एवरेज जा सकते हो, तो इट्स गुड दैट यू आर नॉट बिलो एवरेज। As Russia don't have good relation with other countries, can be perceived. Are you Russian? You are Indian. You have a Indian passport. अगर आप रशिया जाते भी हैं तो आपके पास सिर्फ डिप्लोमा वहाँ की अप्रूव यूनिवर्सिटी का है। कोई भी ऐसे रिलेशन की इशू आएगा तो वो इंडियंस पे नहीं आएगा, वो रशियन स्टूडेंट्स पे आएगा, जो रशियंस है वहाँ पे सिटीजन्स। ठीक है। Do we need to carry utensils with us for cooking stuff? Yes, you have to. You should. आप एक साथ में मुझे कुकर प्रेशर कुकर जरूर ले जाइए, एक मिलके कुकर ले जाना है, एक पैन ले जाना है, कुछ चीजें आपको ले जानी है। I'll try to connect one of the student who will help you identify what kind of things you should carry. ठीक है। We will have a degree of Russia. या डिग्री ऑफ रशिया तो हो ही सकती है, बहुत से यूएस के लोग भी रशिया जाते हैं, यूके के लोग भी रशिया जाते हैं। तो क्या वो अपने लोगों को मना कर देंगे? नहीं, डिग्री की कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री आपने ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। यूके के भी लोग पढ़ने के लिए जाते हैं रशिया में। राइट। और बताइए, और क्या क्वेश्चंस हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन वन बैच? अराउंड 12 to 13 स्टूडेंट विल बी इन वन बैच। ओके। व्हाट एल्स? सॉरी। हाँ, माइक्रोफोन। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? सो So it's fine. I hope you got answers. Many of you have not asked any question. Yes, entrance exam will be online. We will soon tell you about it. ठीक है, आपको हम लोग बता देंगे। एंड ये सारे क्वेश्चन किसी ने यहाँ भी, चैट इज डिसेबल्ड, chat is not disabled. It's not disabled. Go for question and answer session. अभी आपका बहुत काम बच रहा है, तो अभी आपके पहले वीजा वगैरह लगेगा आपका, तब बैच बनेगा। ठीक है। अक्टूबर, October will, maybe you will fly to Petersburg. Those who will finish their process ASAP. हाँ, नीट लेवल से भी बहुत कम होता है, नीट का लेवल तो नहीं टच करेगा ये, बट हाँ। Do we need any book in particular to carry with us? Maybe, see these kind of questions, please keep your such questions जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम उनसे आपको कनेक्ट करेंगे, सीनियर्स से आपके, तो उनके साथ आप ये आपके सारे, बिकॉज मैं जो आंसर करूंगी वो डेफिनेटली एक आंसर है, लेकिन जो स्टूडेंट बता सकते हैं वो बहुत बेटर होगा आपके लिए। अभी सारे क्वेश्चंस बोल रहे हैं, अभी डॉक्टर है तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। वी शैल गेट टाइम apart from studies. Yes, Saturday, Sunday is off. You will get time apart from your studies and class. बुक्स की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी? बुक्स अवेलेबल रहेंगी, पर अपनी बुक्स कुछ एनाटॉमी वगैरह की आप ले जाइए। ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम में कनेक्टेड हैं, है ना? वहां पे आप सभी इसलिए कनेक्ट करें हमने, ताकि आप लोग जो है कुछ भी मिस ना करें। एंड other days your classes ending by 4 p.m. so that depends कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं। ठीक है। How far is the main city from the university? 15-20 minutes. नहीं, वो उधर प्रोवाइड कर दूंगी मैं। फ्रैंक मैटर हम लोग आपको देते हैं, जो कि बेस्ट है। वी हैव टू टेक देम टू लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट विल गिव अस। लाइब्रेरी से भी आप ले सकते हैं। इसकी भी एक हमने वीडियो में डाला है एनाटॉमी वाली क्लासरूम में,
अगर आपने पूरी देखी होगी कि टेक्स्ट बुक्स फ्री मिलती हैं, लेकिन वो वापस भी रिटर्न करनी होती है। ठीक है, अपने साथ ले जाओ, पढ़ो जितना टाइम आपके पास हो, उसके बाद आपको रिटर्न करनी होती है। दूसरी बात, हॉस्टल के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है विद डेस्क एंड एवरीथिंग, बच्चे वहीं पे पढ़ाई करते हैं, अपनी बुक्स ले जाते हैं नीचे, हॉस्टल के नीचे वाले फ्लोर पे। तो वहां पे अपनी पढ़ाई करी, फिर वापस अपने रूम में अब सोने आ सकते हैं। तो मोस्टली पढ़ाई बच्चे रूम में नहीं करते, अपने नीचे वाले स्टडी रूम में करते हैं। ठीक है, so next webinar will be with a student who is right now studying in the university. ठीक है, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस तो आप लोग पता नहीं क्यों पूछते हैं कि अगर ये होगा, तो वो सब आपको वहां पता चल जाएगा। ठीक है, वी शैल ऑल्सो गेट होमवर्क। हाँ, होमवर्क होगा कि रिविजन करके आना है, जो कल पढ़ाया है उसी का रिविजन करके आपको आना है। विल यू प्रोवाइड नंबर ऑफ सीनियर्स एंड पास आउट स्टूडेंट्स? नंबर प्रोवाइड करके आप क्या करोगे? उनसे बातें करोगे, फ्रेंड बनाओगे। सीनियर तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे जब वहां पे पहुंचोगे, है ना? या रूम्स हैव पर्सनल डेस्क, आपने रूम्स की वीडियो में देख ही लगता है, अगर आप देखते हो तो आपको डेस्क दिख जाते हैं। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछ रहे हो आप लोग अब, और अभी के लिए इतना ही। फिर बाकी के जो क्वेश्चंस है आप नेक्स्ट वेबिनार में पूछना मेरे से। ओके, थैंक यू सो मच।